Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. So friends, this video is very helpful for everyone as we know that TCS announced the mass hiring for 2024 batch and the interview is in the upcoming weeks. Okay, so today we have one special guest with us, Pawan sir. Pawan sir is TCS senior HR. He has 11 year of work experience, 11 plus year of work experience, and he is sharing his experience that is related to their journey as well as how to prepare for your technical HR MR interview. As we know that the interview is the last final step that is related to your selection. So first of all, Pawan sir, thank you so much. You are sharing your experience that is related to your journey as well as that is related to interview tips. Definitely, it will very helpful for all candidates. Thank you very much, Lokesh. It's my pleasure that I am sharing my insight. So, first and all, I want to tell about me. Yes, sir. I did BTech in computer science in 2012, then joined TCS in 2013. Basically, I got selected in TCS September in 2012, Yes, sir. and my joining was there in 2013 March. So Yes. it's very huge gap. Yes. And then I worked as a Java developer in TCS. Yes. Basically, my ILP has been done in Java, then moved to SOA, service oriented architecture. After that, I did work in Android, iOS, React.js. Yes. Then, when I got bored, do coding day and night, so I did MBA in Yes. HR and IB International Business. Yes. Then I worked as a PMO Yes, sir. in DG Yes. as a DAF, Delivery Excellence Group, as a auditor, Yes, sir. then a junior HR in resourcing team, and currently I am working as a senior recruiter in the TCS in resourcing team internally and externally. Yes. And till now, I have taken more than 10,000 freshers and experienced professionals interviews till Yes. now. Yes, sir. And parallelly, I am giving mentorship to the students right now. Till now, I have given mentorship more than 5,000 students, and all are working in MNCs. Yes, sir. So it's my little bit small introductions. And currently, I am Asia head of International Technical Federation. Thank you Actually, so I much. am member of ITF. Yes, sir. So it's office in New York. It's basically big networking group. Yes, sir. There are, I think, 150 CEOs of the MNCs Yes, sir. are there, and HR, most of HR are connecting, and it's very huge networking group. Yes, sir. Yeah, Yeah. Sir, thank you so much. You are, first of all, thank you so much. You are giving your valuable time to us as well as you are sharing your experience with us. So definitely it will very helpful for all candidates. So sir, as we know that TCS interview consists of three part, technical, HR and MR. Okay, you know very well. So sir, what are the important tips for technical interview? We have to first focus on technical, then we can move on to next part. Lokesh, before going to discuss on TR, Yes, sir. I'll give some important tips Yes, sir. to the students before going the interview what they should do. तो इस पर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्टली, देन Yes. वी विल कम ऑन द TR, HR एंड MR. Yes, sir. बिकॉज अगर हम डायरेक्टली TR पर आएंगे तो कुछ चीजें हैं, दे विल दीज हैव बीन मिस्ड. Yes. ओके, तो फर्स्टली इफ यू आर गोइंग टू इंटरव्यू ऑफ द TCS, मैं किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्टली नो अबाउट द कंपनी डीपली. Who's the current CEO of that company? What is the revenue? Okay. About the employer, Yes, sir. work culture, Okay. okay, and about the client of that company. क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर वो पूछ सकता है कि हमारे क्लाइंट कौन कौन है. Okay. सो Yes. स्टूडेंट शुड R&D, गो Yes. ऑन द गूगल, और गूगल पे मोस्ट ऑफ थिंग मिल सकता है कि कौन क्लाइंट है. इफ
यू विल टेल एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू कि सर टीसीएस का ये क्लाइंट है, तो इंटरव्यूअर के माइंड में एक अलग से इमेज बनेगा कि रियली ही और सी वांट्स टू ज्वाइन। यस सर। तो ये सारी चीजें फर्स्टली जानना है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट सीओ पढ़ जाएंगे कि हु इज द सीओ, यस सर। इंटरनल चीजें डीपली नहीं जाते हैं, कब कब से स्टार्ट हुआ, दे विल रीड इट, बट डीप इफ यू are going to study deeply, definitely your chance will be increased. ओके। And second thing, before going to interview, prepare your CV. यस सर। Your CV should be very impressive. If your CV is not impressive, definitely you will get rejected. CV आपका बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि बहुत impressive होना चाहिए। And I one advice and suggestion for the student, your time and money spend on the CV. अगर आप बीटेक करने में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो 1,500-2,000 रुपए आपको सीवी पर अपना जरूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद से सीवी प्रिपेयर कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया ऑब्जेक्टिव्स, एंड इंटरव्यूअर आस्किंग व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव और वो ऑब्जेक्टिव आपका मिसमैच कर रहा है, तो इट्स वेरी वेरी बैड इंप्रेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपका सीवी बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। सीक द हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट, और जब आप एक्सपर्ट से हेल्प लेंगे तो ही और सी विल गाइड यू कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट, बिकॉज योर सीवी एंड योर रिप्रेजेंटेशन स्किल्स आर मोस्ट वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन। सो आपका सीवी बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, किसी भी, एंड ट्राई टू गेट द हेल्प the expert or leaders from that company in which you are going to for interview. ओके। जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर कोई भी लीडर्स, चाहे वो आपका उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, इफ यू विल गेट हेल्प इन प्रिपेयरिंग द सीवी, बिकॉज सीवी भी आपका कंपनी वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग टू इंटरव्यू ऑफ अमेजॉन एंड टीसीएस, दोनों के लिए आपने सेम, क्योंकि दोनों का डिमांड अलग अलग। आप लोग क्या करते हो कि एक ही सीवी बनाया और उसी को हर जगह आप लेके चले जाते हो। तो योर सीवी शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कंपनी इन विच यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। तो सीवी आपका बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। सीवी को मैं ऐसे समझ सकता हूँ, फर्स्ट टाइम अगर आपकी शादी होने वाली है और आपको 10 लड़कियों के फोटो आते हैं, तो आप किससे डेट पे जाओगे, जो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, इंप्रेसिव होगा जिसका, तो वैसे ही आपका सीवी जो है आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर अगर मैं पर्टिकुलर टीसीएस को लेके चलूं कि सर हमने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ सीवी अपडेट किया था, तो क्या अपडेटेड सीवी हम लेकर जा सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन अपडेट इट एंड ब्रिंग दैट, और एट लीस्ट 5 to 6 कॉपी यू शुड कैरी, एंड इफ पॉसिबल मेक इट कलर कॉपी। कलर का एक अलग से इंप्रेशन हो। आपका सीबी शुड बी इन वेल मैनर्ड। सीबी आपका बिल्कुल वेल मैनर्ड होना चाहिए, कहाँ पर क्या लिखना है, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, मेंशन योर सिटी आल्सो इन सीबी। जनरली हम एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं, तो यू शुड मेंशन योर अचीवमेंट आल्सो, आपने क्या क्या अचीव किया, एंड वन वाव फैक्टर्स शुड बी देयर, ताकि इंटरव्यूअर देखे और ही शुड फील कि वाव यू डिड इट। यस सर। क्योंकि जब वाव फैक्टर होगा आपके सीवी में तो डेफिनेटली एक अलग से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मैं इंटरनल चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली मार्केट में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है। यस सर। एंड योर सीवी के अंदर उतनी चीजें मेंशन कीजिएगा जितने के आप आंसर कर सकते हो। ओके। जनरली आई ऑब्जर्व्ड इट कि सीवी के अंदर मोस्ट ऑफ थिंग यू यू हैव मेंशन्ड, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं आती हैं। यस सर। तो जस्ट मेंशन दीज थिंग्स जिससे आप अवेयर हैं, तो सीवी आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये आपके चांसेस बढ़ाता है। यस सर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गेट ए रेफरल फ्रॉम दैट इंडस्ट्री लीडर। अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, if you know anyone from
दैट कंपनी लीडर, तो वहां से रेफरल लीजिएगा। और एक हर कंपनी का इंटरनल एक पोर्टल होता है, ही और शी कैन रेफर यू इन दैट पोर्टल। फिर आपको एक आईडी मिलती है वहां से, तो वो आईडी यू कैन मेंशन योर सीवी, या तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट पड़ता है और आपको मे बी प्रायोरिटी भी मिल सकता है। तो अगर आप किसी भी लीडर को जानते हैं, किसी भी कंपनी के, जिस भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, अगर मैं टीसीएस की बात करूं, अगर आप किसी भी टीसीएस के लीडर को जानते हैं, तो उसको अपना सीवी, अपना नाम रेफर करा लीजिएगा। उससे आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिलने वाला है। तो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेफर कराते हैं तो उसका चांस मिलेगा। रेफरल का मैं बेनिफिट अगर आपको बताऊं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू कैन डिस्कस विद द इंटरव्यूअर कि वन ऑफ माय फ्रेंड और कलीग और रिलेटिव आर वर्किंग इन टीसीएस, सो उन्होंने मेरे को बताया हाउ द वर्क कल्चर, सो मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ टीसीएस को। ओके क्योंकि जब एचआर या टेक्निकल इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा क्यों करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस, तो जनरली हम लोग कहते हैं जी वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप रेफर दे के बताएंगे कि वन ऑफ माय फ्रेंड और वन ऑफ माय कलीग और वन ऑफ माय रिलेटिव और मेरे चाचा पापा, वॉट एवर यू कैन गिव द रेफरल, ही इज वर्किंग ऑलरेडी इन टीसीएस सिंस 12 ईयर्स और उन्होंने बहुत तारीफ की है। तो इस टाइप का अगर एनवायरनमेंट मिलता, वर्क कल्चर मिलता है, अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेंगे, तो कौन नहीं ज्वाइन करेगा टीसीएस को। यस ठीक है। sir so तो one point sorry for interrupting you sir one point as this is a mass hiring okay this is a off campus mass hiring so like how anyone take the referral for that because it is a open hiring so referral is for other opportunities or for related to TCS. आई एम टॉकिंग अबाउट द टीसीएस ओनली राइट नाउ। Okay, okay, sir. अगर मास हायरिंग है और आप टीसीएस के किसी बंदे को जानते हैं, तो Okay, उससे आप रेफरल ले सकते हैं। okay, sir. Okay. तो So, ही yeah. कैन रेफर यू, वो Okay. आपको रेफर आराम से कर सकते हैं बिफोर गोइंग द इंटरव्यू। जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें वो इंटरनल भी बताएंगे, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इफ यू विल डिस्कस विद योर इंटरव्यूअर, तो डेफिनेटली आपके चांस इंक्रीज होंगे। ओके सर सो सर अभी काफी सारे लोगों का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है दे गॉट द इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड मेल सो इफ समवन फ्रॉम TCS ही इज रेफरिंग द पर्टिकुलर नो नो कैंडिडेट नो नो, इट इज अगर वो पॉसिबल नहीं, या अगर सिर्फ सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग नहीं मिली है, या सो ही और शी कैन नॉट रेफर। ओके या सर अगर ज्वाइनिंग मिल गया है, वो काम कर रहे हैं टीसीएस के अंदर, ही और शी इज वर्किंग इन टीसीएस, देन ही कैन रेफर यू। ओके हमारा इंटरनल पोर्टल होता है, उसमें आपको रेफर कर सकते हैं। जी सो सर यू कैन गेट रेफरल फ्रॉम देयर। या और एक मैं और तरीका बताता हूँ आपको, यस सर सभी बच्चों को। अगर आपको रेफरल चाहिए किसी भी कंपनी का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीसीएस, तो हमारे आईटीएफ पे जाइए, internationaltechnicalfederation.com। वहाँ पे हमारा रेफरल का एक होता है। आप वहाँ पे एक प्रोग्राम है, कॉलेज टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उस या पर क्लिक करेंगे। उस पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो रेफरल पे आप क्लिक करेंगे। आई बट दे चार्ज समथिंग, डोंट नो कितना चार्ज है, वो उसको चार्ज करते हैं 500 समथिंग रेफरल का। या ठीक है, तो वहां पे जाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली बहुत सारे इन्फोसिस का, गूगल, जिस भी कंपनी का रेफरल चाहिए वो आपको रेफरल डेफिनेटली करा के देंगे। ओके ठीक है, थैंक यू यू कैन रेफर दिस वन ऑल्सो। आप या अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आप उनको भी गाइड कर सकते हैं। यस सर ठीक है। डेफिनेटली दूसरा, तो रेफरल से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। मैं एक्सपीरियंस वालों की भी बात कर रहा हूँ। अगर यस आप एक्सपीरियंस हैं, इफ वी आर गेटिंग 1000+ एप्लीकेशंस, ठीक है, सपोज कर लो, मैं इंटरनली चीजें अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वी नीड जावा 5+ ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल चेक आउट, हमारा इंटरनल पोर्टल को हम चेक करते हैं किस किस लोगों ने रेफर किया हुआ है जावा के एप्लीकेशंस को। ओके तो फर्स्टली वी विल गिव प्रायोरिटी देम, या जो भी रेफरल हो उनके हम रिज्यूम चेक करते हैं इंटरनली। उसके बाद हम जो भी हमारा naukri.com या लिंक्डइन या इस टाइप से अप्लाई होता है वहां जाते हैं, क्योंकि हमारा भी एफर्ट बचता है। यस सर डेफिनेटली सो रेफरल बहुत बड़ी काम की चीज है। तो रेफरल मैंने इसीलिए डिस्कस कर लिया है, अदरवाइज ये कोई डिस्कस कभी करेगा भी नहीं इंटरव्यू टाइम पर। और मैंने आपको बता भी दिया, इफ यू वांट रेफरल, गो ऑन internationaltechnicalfederation.com। वहाँ पे एक कॉलेज टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कुछ ऑप्शन है,
वहां क्लिक करेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, रिज्यूमे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें हैं आपको। यस सर। ठीक है। यस सर। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू, मैंने बताया कि वर्क कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कंपनी। यस सर। ठीक है। वर्क कल्चर के जानेंगे, वो वर्क कल्चर और जो भी इंटरनल चीजें हैं जहां से आप रेफरल ले रहे हैं, डेफिनेटली ही विल डिस्कस विद यू। तो उससे 2 मिनट का टाइम तो कोई नहीं ज्यादा देगा आपको, हम्म। बट अगर आपको 2 मिनट भी वो अपने कॉल पे दे देते हैं या 1-to-1 दे देते हैं, इट्स एनफ फॉर यू। उनका नाम आपको पता लग गया, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप डिस्कस कर सकते हैं, ही इज माई कलीग या रिलेटिव बता सकते हैं। ठीक है, उनका नाम ये है, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कब सपोज करो, इफ यू आर कनेक्टिंग विद एनी मेंबर ऑफ इन्फोसिस और आपको पता है कि 2 साल से काम कर रहे हैं, जब इंटरव्यू टाइम पे आप बताएंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, ही इज रियली वेरी इंटरेस्टेड टू जॉइन अस। यस सर। क्योंकि इसमें एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, डेफिनेटली, क्योंकि हम चेक भी करते हैं योर यस। पेशेंस लेवल, योर एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि इफ वी विल आस्क यू कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट का, आप सपोज करो आप बीमार हो गए, यू ओके। आर ऑन सिक लीव और हमारा डेडलाइन आने वाला है, हाउ यू विल मैनेज? ओके। या तो दिस उस टाइप ऑफ इसके क्वेश्चन। आंसर्स स्टूडेंट्स को आने चाहिए। क्वेश्चंस तो पता होता है स्टूडेंट्स को, बट आंसर नहीं पता। इस टाइम पे क्या आंसर करेगा? यस सर। तो वो कौन बता सकता है? आपका मेंटर बता सकता यस सर। है। फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग मेंटरशिप, वही गाइड कर सकता है। अब यस। अगर स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गिव आंसर। यस सर। some यू like इफ they यू आर are ऑन, confused like what is the correct answer. क्या आंसर देंगे हम? अब Yeah. आप बीमार हो और आपकी तबीयत खराब है और क्लाइंट की डेडलाइन आने वाली है और प्रोजेक्ट मैनेजर इज कॉलिंग यू, कम एंड डू वर्क, तो आप फंसे हुए हो। Yes sir. अब क्या आंसर करोगे? तो इस टाइप के आंसर्स आपका कौन, हु कैन गिव? मेंटर कैन सजेस्ट यू। Yeah. सो मेरा जो लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट है, गेट मेंटरशिप। Okay. विदाउट मेंटरशिप आपके चांस बहुत कम है। अगर Yeah. आप मेंटरशिप लेते हैं किसी से भी है, अगर कोई आपका अच्छा मेंटर मिला हुआ है फ्रॉम द इंडस्ट्री या जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑफ द इंटरव्यूज, कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, इफ यू हैव मेंटर, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपको रहते हैं। अब जब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं तो आप पहले तो उन डाउट्स का सॉल्यूशन सर्च करने में ही अपना टाइम दे देते हो, प्रिपेयर तो कर ही नहीं रहे हो। प्रिपरेशन तो बात की चीज है। इफ यू हैव गुड मेंटर, तो वो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ही विल गेट he will get solution of that your problems or your issues। आपको सिर्फ you should focus on your interview। क्योंकि जनरली मैं देख रहा हूँ मेरे पास अभी लिंक्डइन पे लास्ट 7 डेज से करीब आपका 20,000 प्लस मैसेज आ चुके हैं। Yes sir. एंड डेफिनेटली आई एम नॉट एबल टू आंसर टू ईच एंड एवरी वन। सबका आंसर नहीं मिलेगा। अगर उनके पास कोई मेंटर होता तो हो सकता है कि वो मुझे मैसेज करने में अपना टाइम नहीं खराब करता। अभी कहाँ फोकस कर रहे होते? अपने इंटरव्यू पर। Yes तो sir. एक गुड आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। ठीक है। तो इफ यू हैव गुड मेंटर, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर हाउ टू टेक मेंटरशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्री लीडर? ये Yeah. बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम, सपोज करो यू आर गोइंग टू फॉर इंटरव्यू इन गूगल, तो गूगल के बंदे से हम कैसे कनेक्ट करें सर? Yes sir. हमारा तो कोई लिंक ही नहीं है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फोसिस, तो कैसे जाएं? स्टूडेंट्स का लिंक नहीं है, कॉलेज वालों का लिंक नहीं है। तो उसके लिए फर्स्टली गो ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाइए, सर्च कीजिएगा, वहां पे गूगल कंपनी डालेंगे, वहां पे जो एम्प्लॉय का ऑप्शन आता है पीपल वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे गूगल आपके गूगल के एम्प्लॉय मिलेंगे। अब किसको कनेक्ट करना है? Yes sir. किसको कनेक्ट करना है? हु इज ए गुड गाय? Yeah. एचआर को कनेक्ट कीजिएगा। क्योंकि डेवलपर को नॉलेज नहीं होता है रिक्रूटमेंट का, Yes sir. उसको नहीं पता क्या पॉलिसीज है। Yes if sir. you are able to connect HR, then search out their human resource। तो आपको बहुत सारे HR उसके मिलेंगे लेंगे। Yes sir. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं आता। नहीं आएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। Yes sir.
है किसी के पास उतना टाइम? नहीं है। क्यों आपको रिप्लाई करने वाला है? अब इसका भी तरीके होता है। जब तक आप किसी के नोटिस में नहीं आते, जब तक आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तब तक ही विल नॉट रिप्लाई यू। तो फर्स्टली उसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा। वो इंस्टा पर है, वो लिंक्डइन पर है, वो यूट्यूब पर है, या वो और फेसबुक पर है, कहाँ कहाँ किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है वो। और Yes. वहां पर जाकर जो उसकी पोस्ट है, उन पोस्ट पर कमेंट कीजिए, उसके बारे में लाइक कीजिए। कम से कम भी यू हैव टू डू 2 or 3 days। Yes, sir. तो ताकि जब उसको नोटिफिकेशन मिलेंगे सेम नेम के हर उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डेफिनेटली आप नोटिस में आएंगे। और फिर उसको जब आप लिंक्डइन पर टेक्स्ट करते हैं कि सर मैंने आपका ये पोस्ट देखा, इट वाज रियली इम्प्रेसिव। तारीफ तो करनी पड़ती है, तारीफ सबको अच्छी लगती है, चाहे Yes. वो प्रोफेशनल हो या ना हो, सबको तारीफ अच्छी लगती है। तो पोस्ट आपका बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपको यूट्यूब पर भी देखा, आपका इस नाम से यूट्यूब चैनल था, वहां पे आपका वीडियो बहुत अच्छा था, वो मेरे लिए बड़ा ही अच्छा वीडियो था। आपको मैंने इंस्टा पर देखा, ठीक है। तो तब उसको, जब उस बंदे को, और ये पूरा पैराग्राफ मत बनाइएगा, Yes, sir. अंडर, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, पूरा एक पैराग्राफ लिख के भेज देते हैं। पैराग्राफ के लिए आपके पास किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा पैराग्राफ आपका पढ़ने वाला है। तो पॉइंट वाइज ये 2-3 जब पॉइंट भेजेंगे तो डेफिनेटली वो आपको रिवर्ट बैक मिलेगा। ये मैं Yes. इंटरनल चीजें बता रहा हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूँ। Yes, sir. अगर हम जो भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, अगर उनसे भी हम कनेक्ट करेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा उनको, वो तो स्टूडेंट्स हैं। Yes, और sir. आप यू आर कनेक्टिंग गूगल एचआर, इन्फोसिस एचआर और टीसीएस एचआर, तो इतना तो पॉसिबल, इतना तो आसान नहीं है कि यू विल गेट आंसर। Yes, तो sir. उसके लिए कुछ एफर्ट आपको करना पड़ेगा। Yes, sir. अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट आंसर फ्रॉम। तो Yes. ये कुछ आपको एफर्ट डालना है। और जब आप आंसर्स वहां से मिलेगा लिंक्डइन से आपको, तो अगर वो आंसर कर रहा है तो उनसे धीरे धीरे उनका मोबाइल नंबर मांगिए कि Yes. सर मुझे आपसे मेंटरशिप चाहिए। और बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं इंडस्ट्री के अंदर जो अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, Yes, sir. बहुत सारे हैं। तो उनका आप मेंटरशिप प्रोग्राम चेक कीजिए, क्या इनका मेंटरशिप प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। Okay. और अगर वो उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। Yes, तो sir. उनका मेंटरशिप प्रोग्राम आप ले सकते हैं, तो उससे बहुत बड़ा आपको फायदा मिलता है। Yes, sir. तो आपका जो भी उनका प्राइस है 900 समथिंग होता है, 100 रुपए भी लेते हैं, जो भी वॉट Mm. एवर, तो Mm. उससे बहुत बड़ा आपको फायदा मिलने वाला है। Yes, sir. ठीक है। थर्ड मैंने आपको बताया, जनरली आपको आईटीएफ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। Yes, sir. ठीक है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, और अब हमारी जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो सारी हमारे होती रहती है। इस बार से हमने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, अदरवाइज पहले कॉर्पोरेट्स की मीटिंग्स होती थी सर, Yes, sir. मार्केट एनालिसिस होता था, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अभी डिस्कस किया है, तो इस पर जब आप फोकस करेंगे तो आपका चांस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। Yes. इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन में आपके ग्रेटफुल कुछ वर्ड्स होने चाहिए फर्स्टली। Okay. जब भी आप इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाले को आपको क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेटफुल एंड थैंक्स वाले वर्ड्स होने चाहिए। थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई Yes. एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। इस टाइप के जब वर्ड यूज करेंगे तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपका इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इंप्रेसिव। उसमें आपने इंट्रोडक्शन में आपको अपना कॉलेज जर्नी, अपना स्कूल जर्नी को इंक्लूड करना है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप हैं, उनको आपको इंक्लूड करना है। और मैं ऑलरेडी कई वीडियोज में बता चुका हूं कि जो भी टॉपिक आपको अच्छे से आता है, आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो इन योर इंट्रोडक्शन रिपीट योर प्रोजेक्ट और योर इंटर्नशिप और योर सब्जेक्ट मैनी टाइम्स, Yes, sir. ताकि आपकी एक अलग से इंटरव्यूअर के माइंड में उसकी इमेज क्रिएट हो सके। Yes, sir. क्योंकि जो भी वर्ड आप यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉल मैं आपको बता दूं कि आपका जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यूअर आपका इंट्रोडक्शन बड़े बड़े ही ध्यान से सुनता है, और इंट्रोडक्शन से ही वो फिर पॉइंट्स निकालते हैं। इंट्रोडक्शन से ही आपके क्वेश्चंस रेज होते हैं। और अगर आपने इंट्रोडक्शन में जो भी यूज किया और अगर आपका आंसर नहीं, यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, तो आपका रिजेक्ट हो गए, लिख के ले लो मेरे से। तो Yeah. इंट्रोडक्शन शुड बी योर वेरी वेरी इंप्रेसिव। Yes, sir. इंट्रोडक्शन के लिए भी आपको किसी ना सीख एक्सपर्ट है,
किसी ना आप बनाइए, और योर इंट्रोडक्शन शुड बी लेस देन 1.5 मिनट्स। 1.5 मिनट से आपका कम का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा आपने इंट्रोडक्शन कर दिया और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपने इंक्लूड कर दी है, और आप एक भी कोई भी एक इमेज इंटरव्यूअर के। Sir, your voice is mute. Sir, your voice. Yeah. सो जितना आपका छोटा इंट्रोडक्शन होगा, 1.5 मिनट से कम का इंट्रोडक्शन होगा, एंड यू आर रिपीटिंग सम वर्ड्स ओनली, तो वो इमेज इंटरव्यूअर के माइंड में बनेगी जिससे आप चाहते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन एयर करे, Okay. क्वेश्चंस करे। Yeah. सो ये इंट्रोडक्शन आपका वेरी वेरी इंप्रेसिव होना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। पहला, आपका सीवी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रेफरल आपके पास होना चाहिए, मेंटरशिप कहीं ना कहीं कोई अच्छा मेंटर आपके पास होना चाहिए। अपना जो सीवी है, अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो अपना सीवी किसी ना किसी एक्सपर्ट से आप जरूर रिव्यू कराइएगा बिफोर गोइंग टू। ठीक है। तो और आपका इंट्रोडक्शन वेरी इंप्रेसिव होना चाहिए। अगर ये चीज इंप्रेसिव है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर ये इंप्रेसिव नहीं है तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजेक्ट। Yes, ये sir. लिख के ले लो मेरे से, Yes, sir. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मैं नहीं, ये दुनिया की जितनी भी, जब भी हमारी एचआर मीट होता है उसमें भी जब एचआर से हम फीडबैक लेते हैं, जब डिस्कस करते हैं, यही चीजें निकल के आती हैं। ये मैं जो पूरा आपको दे रहा हूँ, Yes. एक्चुअली आई हैव अटेंडेड मोर देन 100 एचआर मीट एट Yes. द इंटरनेशनल लेवल। Yes, sir. तो जब उनसे डिस्कस करते हैं तो ये सारी चीजें निकल के आती। Definitely. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेश जी आपका। Yes, sir. Sir, what is the like how to prepare for the technical interview? As we know that technical is one of the most important for all the roles like Ninja, Digital, and Prime. फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू, फर्स्टली प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट Okay. डीपली, because more than 60 to 80% questions will be put from your project। Yes, sir. और जो क्वेश्चंस है वो आपके अकॉर्डिंग पूछेगा, ये भी मैं बता दूं। Yes. आपको टर्न आउट करना आना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ द इंटरव्यूअर। यू शुड लर्न इट। Yes, sir. क्योंकि जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं है इंटरव्यूअर के साथ, डेफिनेटली आपके चांसेस कम है। Yes, sir. टेक्निकल के अंदर आपका इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस ही विल आस्क, related to your subject. You should prepare at least 2 subjects strongly and 4 subjects from whole journey, Okay. like data structure, Yeah. CN, Computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस टाइप के कोई भी आप 4 सब्जेक्ट ले लीजिएगा, और उसको आपको मेंशन करना है when you are introducing yourself, your college journey। Yeah. So you have mentioned, sir, during my college I have studied 32 or 48 subject, but I am good in 4 these subject or Okay. 2 these subject। जब आप मेंशन करेंगे तो वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा। Definitely. अदरवाइज इफ यू आर नॉट मेंशनिंग ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है फिर। Okay. So means सो the यू हैव टू projects मेंशन। and technical subjects are very important. Yeah. नेक्स्ट वन लैंग्वेज, Okay. कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे सी प्लस प्लस, चाहे जावा, चाहे पाइथन, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है। Yeah. जैसे मशीन लर्निंग, एआई है, चैट जीपीटी से भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट Yes. जीपीटी के बारे में क्या जानते हो? अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिया कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू फेस ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट, Yeah. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं। Yeah. विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, Okay. व्हाट वाज योर रोल इन योर प्रोजेक्ट, Yes, sir. बैकएंड आपने किस में बनाया है, फ्रंट एंड में क्या यूज हुआ है, दोनों को Database. कैसे कनेक्ट किया, Hmm. कौन सा डीबी यूज किया है। Yes, sir. अब डीबी अगर आपने माई एसक्यूएल या मोंगो, बहुत सारे डीबीज है, कोई भी यूज किया है, एजेंडा, ये नया डीबी आया, Yeah. तो अगर कोई भी डीबी आपने यूज किया तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे।
अगर वो प्रोजेक्ट पर, इफ इंटरव्यूअर इज डिस्कसिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका कौन सी जो लैंग्वेज आपने यूज की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा. Okay. एंड रिमेंबर वन थिंग, ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन मेंशन ओनली दैट लैंग्वेज वॉट एवर यू हैव यूज्ड इन प्रोजेक्ट. Okay. Yes. ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आपने पाइथन में बनाया और आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो मैं जावा में बहुत अच्छा हूँ. Yes, sir. वो पूछेगा अगर जावा में अच्छे थे तो जावा में क्यों नहीं बनाया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. Yeah. अगर हम टेक्निकली की बात करें ना, तो टेक्निकल में क्या है कि हम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चंस पूछते Okay. हैं. इफ यू आर गिविंग प्राइम इंटरव्यू, तो प्राइमी के अंदर वी विल चेक योर क्रिटिकल स्किल्स, क्योंकि वी विल डिप्लॉय यू क्रिटिकल प्रोजेक्ट, Okay. बिकॉज वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, यू नो वेरी वेल. तो हम आपको जो भी प्राइम एंड डिजिटल वाले लोग हैं उनको बहुत सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट के अंदर हम उनको डिप्लॉय करते हैं. तो उनका वी चेक आईक्यू लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेडिकेशंस. ऐसा नहीं है कि आप स्किल्स बहुत अच्छा बट यू आर नॉट डेडिकेटेड, तो वो भी चेक किया जाता है. Yes, sir. स्किल्स अच्छा है बट आपके पास डेडिकेशन नहीं है, देन स्किल्स बेकार है. व्हाट स्किल क्या करेगा आपका. Yeah. तो वी विल चेक आउट योर डेडिकेशन. अब डेडिकेशन कहाँ चेक होता है, ड्यूरिंग द एमआर. During the MR will check your dedication, because MR, who will take MR? MR is very senior person who is the Okay. taking your MR. तो Yeah. बहुत सीनियर पर्सन होता है, तो he will check out your patience level and he will give some scenario कि ये मेरा सिनेरियो है, इसके अंदर आप कैसे वर्क करोगे. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस. तो अगर हम बात करें सी से, हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा गया. टीआर आपका जो होगा, Okay. कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई Yeah. थिंक फंक्शन क्या होता है, ओवरलोडिंग जो आप जावा वगैरह के अंदर पढ़ते हैं ऊप्स के अंदर आता है, व्हाट इज द ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, ऊप्स के अंदर कंस्ट्रक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, real real life example, with example if you will explain, this will be plus point for you. तो इस टाइप के क्वेश्चंस, पॉइंटर का क्या यूज है, अगर पॉइंटर नहीं होता तो प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट आता. Okay. तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा. Okay. अगर फंक्शन नहीं होता तो फंक्शन को हम कैसे रिप्लेस कर सकते थे. Yes. रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, डेटाबेस में अगर आते हैं तो हम जॉइंस क्या होते हैं, व्यूज क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है, आई थिंक पढ़े होंगे. Yes, sir. एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, Yeah. डेटा डेटा हमारा, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, कोई हम सिनेरियो देंगे, ड्यूरिंग द सिनेरियो हम आपसे बोलेंगे डेटाबेस डिजाइन करो. Yeah. तो डेटा स्कीमा क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं डेटाबेस के अंदर, Okay. बिटकॉइन क्या है. Yes, sir. ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस, ऑन विच फैक्टर्स यू शुड वर्क, कौन कौन से फैक्टर पे आपको काम करना पड़ेगा. You should take care what factors during the designing your project, ताकि कोई साइबर अटैक ना हो. एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. मुझे प्रोजेक्ट के अंदर 5 रोल्स बताओ. 5 रोल्स मीन्स, चलो आपने फ्रंट एंड किया, बैक एंड किसी और ने कर लिया, तो कौन कौन से रोल्स थे, 5 रोल्स के नाम बताओ. Okay. Yeah. अगर आपने प्रोजेक्ट सच में नहीं किया होगा तो आप, इफ यू परचेज द प्रोजेक्ट फ्रॉम द मार्केट, तो आंसर नहीं कर पाओगे. Yeah. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा. मर्ज सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, ये पढ़े होंगे, सॉर्टिंग वगैरह, बाइनरी कुछ
आपके फिर उधर एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, सर्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रॉम द ग्राफ, तो इंसर्टिंग। तो ये टॉपिक्स स्टूडेंट शुड प्रिपेयर। यस सर। अपना प्रोजेक्ट एंड वन लैंग्वेज, अगर जावा आपने पढ़ा तो जावा बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर आपने एडवांस जावा नहीं किया तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, आई एम गुड इन कोर जावा। इफ यू मेंशन जस्ट जावा तो वो आपसे फिर पूछेगा, एडवांस जावा से भी पूछेगा। और अगर ड्यूरिंग दैट टाइम आप मेंशन कर रहे हैं कि सर आई एम नॉट गुड इन एडवांस जावा, तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यस सर। तो whatever you know you should mention during your introduction and in your CV also, यस सर। क्योंकि आपको लिमिट ये यू शुड ट्राई कि जितना आता है उतना ही मेंशन करें। ओके। अगर आपने इफ यू हैव मेंशन मोर थिंग और आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो चांसेस विल बी रिड्यूस। या। स्ट्रिंग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स, लिंक्डइन, लिंक लिस्ट सुना होगा, क्यू। यस तो सर। इस टाइप से एसक्यूएल क्वेरीज से जितनी भी क्वेरीज हैं यू शुड लर्न। वो कई बार पूछ लेता है प्रोग्रामर, लाइक अगर आप निंजा से हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। या। कई बार ये भी पूछ सकता है, सपोज वन पर्सन नोज टू लैंग्वेज, वन सी प्लस प्लस एंड अदर जावा, और मेरे पास एक बिग प्रोजेक्ट है, उसने प्रोजेक्ट बता दिया कि इस टाइप का मेरे पास प्रोजेक्ट है, विच लैंग्वेज यू विल प्रेफर। या। क्लाइंट को हमें बताना होता है ना, हमें सजेस्ट करना होता है, वी आर सजेस्टिंग टू द क्लाइंट, तो कौन सी लैंग्वेज सजेस्ट करोगे। यस सर। चूजिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल टास्क। या। अब आपने बोल दिया जी मैं सी प्लस प्लस करूंगा, जबकि उसमें जावा होना था, तो उसका तो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो जाना। यस सर। तो ये चीजें आप कैसे सजेस्ट करोगे। या। और कुछ कुछ जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम, ठीक है, इस एम टाइप के बहुत स्ट्रॉन्ग सारे नंबर। इस टाइप की बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है। हम्म। तो यू शुड लर्न इन एनी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जिसमें भी आप अच्छे हैं। और इंटरव्यूअर ये मान के चलता है यू हैव नॉलेज ऑफ सी। ओके। इंटरव्यूअर मान के चलता है डजंट मैटर इन विच ब्रांच यू बिलोंग्स, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि आई थिंक एवरीवन नोज कि कोई भी आपके पास ब्रांच है, हर ब्रांच के अंदर सी पढ़ाई जा रही है आजकल। यस सर। And it is the like first of the programming language because we clear the basics from that language and we move forward to next of the languages. डेफिनेटली। Yes sir. तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। Yeah. चाहे आप निंजा के लिए जा रहे हैं, चाहे प्राइम के लिए जा रहे हैं, वॉट एवर, चाहे आप डिजिटल के लिए जा रहे हैं, और अगर डिजिटल और प्राइम के लिए जा रहे हैं तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। Yes sir. कि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी वहां चेक करेंगे, आपको सिनेरियोज वहां पे मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको डीबी डिजाइन करने के लिए मिलेगा। Yes sir. आपको एक सिनेरियो दे देगा और बोलेगा कि विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू रिजॉल्व सॉल्व इट। Yeah. आपका जो आपके बग्स होते हैं, आपको सपोज करो उसने 2 कोड लिख के दे दिया खुद, और दोनों के आंसर सब के सेम आ रहे हैं, वो पूछेगा विच कोड शुड वी यूज। Yes sir. प्रॉब्लम दोनों सॉल्व कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम को दोनों कोड सॉल्व कर रहे हैं। अब टीआर विल आस्क कि कौन सा यूज करना चाहिए मुझे। Which one gives the best approach to solve that problem? इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, किसके अंदर मेरा जो मेरा आपका सर्वर है कम यूज होगा, Efficiency कितना आसानी से efficient कौन कितना सा होगा? डेटा डिस्पैच कर सकता है, विच हम्म। विच वन। Yeah. क्योंकि मेरा डेटा बड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, तो विच क्वेरी और विच कोड वी शुड यूज Yes sir. टू फैच द डेटा। तो इस टाइप के अप्रोच
we expect from the crime and digital. Okay. Yeah. डीपली नॉलेज होना चाहिए, और जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको. डजेंट मैटर कि आपको जावा बहुत अच्छे से आता है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. Just like machine और learning, AI, and other cloud. Okay. पाइथन के बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, जो भी आप डालेंगे. एक मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल है कॉर्पोरेट जॉब्स विद पवन भड़ाना, उसमें Yeah. एक पाइथन के मतलब बेसिक क्वेश्चंस मैंने सारे जितने भी हैं 200 प्लस क्वेश्चंस है, आई हैव अपलोडेड देयर. तो वहां Guys, से भी बच्चे check ले the सकते sir. Guys, check the sir's channel and subscribe. हैं. सब्सक्राइब तो बच्चे कर ही लेंगे ना. Yeah. Yeah, ये sir. बच्चे Definitely. Yes, sir. मतलब ही होते हैं बच्चे. No, no, sir. ये सिर्फ वो चैनल सब्सक्राइब No, करते sir. हैं Online learning family will definitely support you. Okay. आई एम And जस्ट आई एम guys, जस्ट I'm जोकिंग requesting कि from all जोकिंग of you, जरूरी है. just go to sir's channel and the link is in the video description. Check that and subscribe. ओके, थैंक्स. Yeah. रिकर्सन क्या होता है, जेबीएम क्या होता है, Okay. जॉइन फंक्शन इन पाइथन, Okay, sir. Yeah. ये सारी चीजें, टपल क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है. डीएसएल लैंग्वेज. Okay. DCL and TSL. Yeah. डोम. Okay. Yeah. तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं. Okay. और आपका जो प्राइम से डीपली नॉलेज होना चाहिए इन विच लैंग्वेज यू हैव वर्क. Yes, sir. कोई भी लैंग्वेज में जिसमें भी आपने प्रोजेक्ट किया है उससे डीपली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. Okay. आपने डीबी को फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट किया, Connect here. Yeah. व्हाट यू हैव यूज्ड. Hmm. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे टीआर के अंदर पूछे जाएंगे. तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर द टीआर. और अगर आपका टीआर हो जाता है तो आपके चांसेस ये मानिए 90% इंक्रीज हो जाता है. Yes, sir. इफ यू रिजेक्टेड इन टीआर तो आपको एमआर और एचआर देने का चांस नहीं मिलेगा. Okay. Yeah. So, sir, this But interview TR is in the one go, na? Like technical round, MR round, and HR round. इसमें क्या होता है, Yeah. many times TR and MR both are conducted at the same time. Okay. TR और MR दोनों एक साथ हो जाते हैं आपके. Yeah. ठीक है. उसके बाद HR राउंड होता है, और कई बार ये भी होता है कि सेपरेट भी हो सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन टोटली सिचुएशन. Yeah. और कई बार तीनों एक साथ हो सकते हैं. Okay. बट जनरली टीआर एंड एमआर एक साथ होते हैं एंड एचआर अलग होता है जनरली. Yes, sir. मोस्ट ऑफ केसेस. Yeah. लेकिन But sir, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि hmm. कैसे होना है. लेकिन कोई भी हो सकता है, तो आपको प्रिपेयर होके जाना है. Yeah. Because in the actual, like in the interview mail of TCS, they mention that all the interviews are on the same day and all the interviews are in the one go, like TR, MR, and HR. नहीं, Yeah. होगा सेम डे ही. Okay. बट हो सकता है कि इन फर्स्ट स्लॉट आपका टीआर एंड एमआर हो गया. अगर Okay. आप टीआर और एमआर में सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आपका एचआर होगा. Okay. Definitely. फर्स्टली इन आर इंटरनल पोर्टल टीआर को रेटिंग करना होता है. Yeah. देन एमआर विल गिव रेट. Yeah. अगर टीआर से रिजेक्ट हो गया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो यू आर नॉट एबल टू गिव एमआर और HR. एचआर. Yes, sir. हो सकता है कि टीआर और एमआर दोनों एक साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, बट इन इंटरनल पोर्टल पहले टीआर को ही रेटिंग करना होगा. Definitely. Yes, sir. टीआर, इफ इन टीआर यू हैव बीन रिजेक्टेड, तो Yes. एमआर आपको कुछ नहीं कर सकते. एमआर के पास आपका फॉर्म भी नहीं दिखेगा. Yes, sir. तो टोटली डिपेंड ऑन टीआर. Okay. अगर आपका टीआर अच्छा होता है तो आपके चांसेस हैं. एमआर के अंदर और एचआर के अंदर आपका एचआर जस्ट विल चेक योर एटीट्यूड, योर कम्युनिकेशन स्किल. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा एवरेज भी है चलेगा, बट आपको जब वो पूछेगा कि आपका वीकनेस क्या है, तो आपको डेफिनेटली बताना पड़ेगा माय कम्युनिकेशन स्किल इज वीक बट आई कैन इम्प्रूव. Yeah.
ठीक है, वो कई बार ये भी पूछता है ड्यूरिंग योर 4 ईयर आपने इंप्रूव क्यों नहीं किया, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। तो उसके आंसर्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, यस सर। और वट एवर यू हैव वीकनेस यू शुड एक्सेप्ट इट, ओके, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली। तो अब अगर हम एमआर की बात करें, एमआर के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस आती है। ओके, क्वेश्चंस पूछता है, इफ योर बॉस इज एरोगेंट, he ओके, asked you to work for 10 to 12 hours. ओके, Listen again, या, स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, if your boss is arrogant, he asked you to work 10 to 12 hours, how you will handle this situation? ओके, दिस इज अ, जबकि टाइम तो काम तो सिर्फ आपको 9 घंटे करना है, 9 to 6 करना है, हम्म, and he is asking to work 12 hours per day. या, हमारे हमारे डेफिनेटली विल आस्क यू कैसे आंसर करना है। तो ये आंसर आना चाहिए, बच्चे को पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपकी शादी हो जाती है, हाउ यू विल मैनेज योर जॉब आफ्टर मैरिज। ओके, आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि तेरे को यहां से नहीं काम करना है, हम्म, सपोज यू बिलोंग टू नोएडा एंड योर हस्बैंड बिलोंग टू हैदराबाद, यस सर, ही इज इन अदर कंपनी, तो हाउ यू विल मैनेज। ओके, अभी 2 साल बाद आपका शादी हो जाता है, 1 साल बाद शादी हो जाता है आपका, हाउ यू विल मैनेज। तो इनके आंसर्स आना चाहिए आपको। अगर इफ वी सेलेक्ट यू, हाउ यू विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर। ओके, अगर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही कैन आस्क, you are good in Java, but we don't have Java project in particular that domain, ओके, and we want to move in C++, यस सर, then how you will manage? Yeah, if you want development project, what we want to deploy in testing project or support project, will you work there? और अगर आपने मना कर दिया तो रिजेक्ट। because there are a lot of candidates are waiting for interview, they have multiple choice. वी डोंट हैव, हमारे पास कोई कमी नहीं है ना, यू नो वेरी वेल। Yeah, definitely, हियर वी आर चेकिंग योर एटीट्यूड, definitely, yes sir, एंड इफ यू आर डायनेमिक डेफिनेटली यू विल बी गेट सेलेक्टेड। yeah, और अगर आप स्टैटिक हैं कि मेरे को तो डेवलपमेंट ही चाहिए सिर्फ, तो फिर तो मुश्किल हो या मेरे को जाए। तो या मेरे को तो जावा के अंदर ही काम करना है, हम्म, एंड वी डोंट हैव जावा प्रोजेक्ट, या मेरे को तो पाइथन में ही काम करना है, या मेरे को रिएक्ट जेएस में ही काम करना है। हम्म, तो बहुत सारे सिनेरियोज यू विल फेस एट द एमआर। MR is all तो about the एमआर के लिए, situation based questions, right? यस 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 यस। Yes. So sir, what about the HR? इफ वी टॉक अबाउट एचआर, तो एचआर के भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। Okay, फर्स्ट क्वेश्चन तो यू नो वेरी वेल कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। definitely, और जब टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर एचआर will observe you, your communication skill, your okay, body language, yeah, because your body language tell inside your, yeah, जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी इंटरनल चीजें बताती है। तो एचआर विल ऑब्जर्व योर आईक्यू, योर एटीट्यूड ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन। yes sir, एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इंट्रोडक्शन, ड्यूरिंग दिस इंट्रोडक्शन आपको अपना वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पर भी फोकस करना है। यू okay, शुड टेल योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। okay, एचआर कई बार ये पूछेगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है
उससे क्या फायदा हुआ आपके कॉलेज को, ओके। आपकी वीकनेस की वजह से क्या नुकसान हुआ, हम्म। आपको खुद को क्या नुकसान हो रहा है। ओके। इफ दिस इज वीकनेस, तो आपने अभी तक इम्प्रूव क्यों नहीं किया, जी सर। व्हाई डिड यू नॉट इम्प्रूव टिल नाउ। या। इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट शुड प्रिपेयर, उनके आंसर्स बड़े वेल मैनर्ड में होने चाहिए। या। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपके जो आंसर्स हैं उसके लिए अगर आप लोकेश भाई जैसे या बहुत सारे एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनसे एक्सपर्ट से एडवाइस लोगे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक। थैंक यू सो मच सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आप सपोज करो वी हैव वन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, लाहौर, ओके। एंड वी नीड वन रिसोर्स देयर, तो आप आर यू विलिंग टू वर्क देयर। और आर यू विलिंग टू रीअलोकेट टू पाकिस्तान? डेफिनेटली। हम्म। आर यू विलिंग टू वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट, 9 to 6 नाइट शिफ्ट। यस सर। अच्छा विलास, और अगर आपने मना किया कि आई एम नॉट रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, मुझे ये परेशानी है, मैं बीमार रहता हूँ, शी विल सेलेक्ट यू और ही विल सेलेक्ट यू। He will check your confidence very well in the एटीट्यूड, yeah, attitude and confidence level. your attitude should be very positive. Positive attitude. Right, right. Yeah. Where do you see yourself in next 5 years? Okay. Yeah. How you will be beneficial for TCS if we select you? Okay. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Yes, sir. What are your area of interest? Who's the CEO of TCS? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। Yes, sir. What इस is बार your का रिवेन्यू कितना रहा hmm. TCS का, Yeah. कौन कौन से हमारे इंडियन क्लाइंट कौन कौन से हैं बताओ, Okay. Yeah, कितने कंट्रीज में भी वर्क। definitely. तो इस टाइप के क्वेश्चंस एचआर के लिए पूछना चाहिए, Yes. मतलब पूछेगा। वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव थिंग अबाउट द टीसीएस। Okay. जैसे अभी आपने पूछा था रेडी टू रिलोकेट, तो Mm-hmm. मैंने शादी वाला भी क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, Mm-hmm. हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सारी छोटी छोटी चीजें एचआर विल डिस्कस। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है एचआर से रिजेक्ट नहीं होते हैं, एचआर कैन रिजेक्ट यू बाय योर एटीट्यूड। Yes, sir. इफ योर एटीट्यूड इज नेगेटिव, डेफिनेटली ही और सी कैन रिजेक्ट यू। तो अगर आपका टीआर और एमआर अच्छा हुआ है तो एचआर में सिर्फ आपको पॉजिटिवनेस दिखाना है, Okay. एवरीथिंग अबाउट द पॉजिटिवनेस। Yes, sir. आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा वीक है, इट विल वर्क, बट आपको अपना लर्निंग बिहेवियर यू हैव टू शो देयर Yes, sir. दैट यू आर गुड लर्नर, एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू कैन मेंशन दैट यू आर गुड लर्नर। इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला बहुत ज्यादा, एंड यू कैन रिपीट एट द टाइम ऑफ एचआर 1 or 2 times that you are good learner in your introduction, but HR then will ask you how you are good learner, तो उसका Okay. आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। Yes, sir. आपको अपना टाइम 10 to 20 मिनट्स वो उन क्वेश्चंस पे स्पेंड करना, वॉट एवर यू नो, Yes, sir. एंड यू विल रेज क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ एचआर। आपके अंदर ऐसी टेक्निक्स आनी चाहिए कि आप खुद ही उसके दिमाग में क्वेश्चन रेज करो, Okay. और उन क्वेश्चंस को रेज करो वॉट एवर यू नो। Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप पूछोगे, और एचआर हो, टीआर हो एंड एमआर हो,
अपना सिलेक्शन के मास्टर आप खुद हैं। डेफिनेटली। एचआर और पीआर और एमआर आपसे सिर्फ वो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट एवर यू वांट, क्वेश्चन यू विल रेज इन द माइंड ऑफ टीआर एंड एमआर और एचआर। यस सर। अब ये टेक्निक्स आपको सीखनी है तो एक्सपर्ट से एडवाइस लेना पड़ेगा। इफ यू डेफिनेटली। वांट लर्न दिस टेक्निक्स, you have to support from the experts। यस सर। ठीक है गाइज, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। लोकेश जी, अभी और कुछ डिस्कस करना है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ट्रूली एक्सप्लेन कर दी है, जिसमें हमने TR HR MR के बारे में बात की, गाइडेंस, रेज्यूमे CV, आपने बहुत सारी नई चीज़ें बताई है जो हमें मतलब इवन मुझे खुद भी नहीं पता थी। तो अब वो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाएंगे एंड डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल तक स्टूडेंट्स के लिए हेल्प रहेगी। Yes. So the last question is related. What are the most important tip that is related to interview? Firstly, I have already mentioned many things, so I Yeah. am giving uh, at the last moment some important tips. First, prepare your CV in very impressive manner, Yes, sir. and second, your introduction should be very impressive. And third one, very important thing, if you made any project, then deploy it on the server Okay. if it's possible. Yes, sir. These are, and last one, get the help from any expert of the industry। Yes, sir. ये मेरा टिप्स है, और मैंने आपको बोल ही दिया, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, पवन भड़ाना, PAWAN BHADAN। Yes, sir. ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको लोकेश जी हैं, ही कैन डिस्कस। Thank you so much, Sarji, for sharing your valuable interview or valuable experience with us. And you shared all the important points and your journey as well as important tips that is related to Ninja Digital and Prime interview. So, guys, I hope this video is definitely helpful for everyone. I suggest you to please share this video with your friends, community, okay? So, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैंडिडेट्स को वीडियोस के बारे में पता चल सके और उन्हें पता चल सके कि हाँ हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू सो मच सर जी अगेन फॉर शेयरिंग योर ओके लोकेश, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।